Once again, welcome back my dear kids. How are you all? I hope you all are fine. So we are learning Learn and Solve Maths Class 2 by Children's Voice. And now we are going to start another chapters of our book. Now we are going to start chapter number 6 and the name of the chapter is Addition and Subtraction of 3-digit numbers. इस चैप्टर में हम 3-digit नंबर के एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे. In previous chapters, you have studied about addition and subtraction of 2-digit numbers with and without regrouping. Previous chapters में आपने 2-digit number के addition और subtraction सीखे, regrouping के साथ और बिना regrouping के भी. So before we start the chapter, first we have to do one warm-up exercise. Question number 1, add the following by regrouping. तो चलिए ऐड करते हैं. 7 + 4 11, 1 here and 1 goes to carry. 4 and 4 8 and 1 9. Now 67 + 27, 7 and 7 14, 4 1 carry. 6 and 2 8 and 1 9. Move to next. 8 and 8 16, 1 carry. 4 and 3 7 and 1 8. Move to next question. Question number 2. Subtract the following by regrouping. 74 minus 34. 4 में से 4 गया 0, 7 में से 3 गए 4. 7 minus 7 0, 6 minus 1 5. 0 minus 4, that is not possible. Then we will take 1 borrow. 10 minus 4 6, 8 minus 4 4. Question number 3, solve the following word problem. तो अब एक वर्ड प्रॉब्लम है, चलिए उसे सॉल्व करते हैं. There were 88 bees in a beehive. Beehive में कितनी bees हैं? 88. 29 of them flew away. उसमें से 29 उड़ गई. तो कितनी bees बची अभी beehive में? तो हम 29 को माइनस करेंगे 88 में से. 8 minus 9 not possible. We will take borrow. So here 18 minus 9 9. 7 minus 2 5. तो कितनी bees बची हैं अभी? 59. Now addition of 3-digit numbers without regrouping. We can add 3-digit numbers by using 2 different methods. 2 different methods से हम ऐड कर सकते हैं 3-digit numbers को. Method 1 using expanded form. Expanded form के method से 224 plus 424. 200 plus 2 tens plus 4 ones. 400 plus 2 tens plus 4 ones. 4 and 4 8, 2 and 2 4, 2 plus 4 6. तो आंसर आया 648. Now method 2 using column method. अब column method से करना है, आपको ऐड करना है 450 and 229. सबसे पहले आपने इन्हें कॉलम्स में अरेंज करा, तो हम ऐड कहां से स्टार्ट करते हैं? 1 से. 0 and 9 9. Number 2, now we will add tens digit. 5 plus 2 7. Now we will move to hundreds digits. Add the 100. 400 plus 200 600. तो सम आया 679. Now assessment 1. Add the following numbers by using expanded form method. अब इन नंबर्स को हमें ऐड करना है expanded form method से. तो पहला है 600, 4 tens 5 ones. 100, 3 tens 2 ones. 5 and 2 7, 4 and 3 7, 6 and 1 7. तो आंसर आया 700, 7 tens 7 ones. Move to question number 2. Add the following 3-digit numbers using column method. अब column method से हम इन्हें ऐड करेंगे. 3 and 3 6, 0 and 3 3, 6 and 2 8. Number B. 1 plus 6 7, 3 and 3 6, 4 plus 3 7. Question number 3. Write in columns in your notebook and add. अब इन numbers को column में लिख के आपको ऐड करना है अपनी notebook में. Addition with 100, 200, 300, 400 मतलब 100 से लेके 900 तक को हमें ऐड करना है. While adding to a 3-digit number, we put the same tens and ones digit and only the 100 digits. अब क्या करना है? जैसे 563 में 300 को ऐड करना है,
तो टेंस और वंस के डिजिट तो सेम रहेगी, आपको सिर्फ किसे ऐड करना है, 100 वाली डिजिट को। 5 + 3 8, तो आया 863। नाउ असेसमेंट 2, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स। चलिए अब इन नंबर्स को ऐड करना है। 368 + 200, टेंस और वंस की डिजिट सेम रहेगी, 3 and 2 5, तो आंसर आया 568। 149 + 500, तो आएगा 649। क्वेश्चन नंबर 2, ऐड द फॉलोइंग नंबर। 200 + 700 900, 300 + 300 600, 200 + 700 900. Now adding 3-digit numbers with regrouping or carry over. Add 653 and 158. सबसे पहले आप नंबर्स को अरेंज करेंगे कॉलम में, उसके बाद आप वंस वाली डिजिट से स्टार्ट करेंगे। 8 + 3 11, 11 का 1 यहाँ आएगा और 1 टेंस की प्लेस पर कैरी जाएगा। अब आप टेंस वाली डिजिट को ऐड करिए। 5 + 5 10 और 1 11, तो 1 टेंस की डिजिट पे और 1 कैरी जाएगा 100 की डिजिट पे। उसके बाद आप 100 वाली डिजिट को ऐड करेंगे। 6 + 1 7 और 1 जो कैरी था उसे भी जोड़ेंगे, तो आया 8, आंसर आया 811। नाउ असेसमेंट 3, ऐड द फॉलोइंग 3-digit numbers by regrouping। तो चलिए करते हैं। 7 + 6 13, 13 का 3 1 कैरी गया। 6 and 5 11, 11 and 1 12, 12 का 2 1 कैरी। 3 + 2 5 and 1 6, 623। 9 + 6 15, 15 का 5 1 गया कैरी। 5 and 2 7 1 8, 8 + 1 9। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड द फॉलोइंग। अब इन नंबर्स को कॉलम में अरेंज करना है और आप इसे अपनी नोटबुक में ऐड करेंगे। नाउ एडिंग मोर देन 2 नंबर्स। जब 2 से ज्यादा नंबर को हमें ऐड करना है तो कैसे करेंगे? ऐड 245, 269 एंड 66 को आप ऐड करेंगे। सबसे पहले आप नंबर्स को कॉलम में अरेंज करा, फिर आप वंस वाली डिजिट को ऐड करेंगे। 5 + 9 14, 14 and 6 20, 20 का 0 2 गया कैरी। उसके बाद आप टेंस वाली डिजिट को ऐड करेंगे। 4 + 6 10, 10 and 6 16 and 2 18, 18 का 8 1 गया कैरी। अब 100 की डिजिट को ऐड करते हैं। 2 and 2 4 + 1 5, तो आंसर आया 580। नाउ असेसमेंट 4, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स। अब नंबर्स को ऐड करना है। 9 + 5 14, 14 and 6 20, 20 का 0 2 गया कैरी। 5 + 4 9, 9 और 8 17, 17 and 2 19, 19 का 9 1 गया कैरी। 5 and 2 7 and 1 8, आंसर आया 890। नेक्स्ट 3 + 7 10, 10 and 2 12, 12 का 2 1 गया कैरी। 4 and 3 7, 7 and 1 8, 8 और 6 14, 14 का 4 1 कैरी। 6 + 1 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, तो आंसर आया 942। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड द फॉलोइंग इन योर नोटबुक। नाउ वंस अगेन यू हैव टू अरेंज दीज नंबर इन कॉलम एंड ऐड द फॉलोइंग इन योर नोटबुक। नाउ वर्ड प्रॉब्लम्स। तो चलिए पहली करते हैं। एग्जाम्पल है पहले, अ फ्लावर वेंडर हैज 186 रेड रोजेस and 237 येलो रोजेस। हाउ मेनी रोजेस डज ही हैव इन ऑल? तो सबसे पहले नंबर ऑफ रेड रोजेस कितने हैं? 186, येलो रोजेस 237। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ रोजेस आ जाएगा। कितना आया? 423। नाउ असेसमेंट 5, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। चलिए वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। There were 444 पैसेंजर ट्रैवलिंग इन एयर इंडिया। एयर इंडिया में कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं? 444 एंड 269 पैसेंजर्स इन जेट एयरवे। जेट एयरवे में कितने हैं? 269। तो टोटल कितने पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं दोनों एयरलाइंस में? तो आप दोनों को ऐड करेंगे। 9 + 4 13, 13 का 3 1 गया कैरी। 6 + 4 10 and 1 11, 11 का 1 1 गया कैरी। 4 and 2 6 and 1 7,
तो आंसर आया 713। My dear kids, question number 2 you have to solve by yourself. Now subtraction. Subtraction of 3-digit numbers without regrouping. अब 3-digit numbers का subtraction करेंगे without regrouping. तो सबसे पहले है expanded form method से subtract करना है 385 को 598 से। तो बड़ी डिजिट ऊपर आएगी 500, 9 10s, 8 ones, उसमें से माइनस करना है 300, 8 10s और 5 ones। 8 में से 5 गए 3, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 3 गए 2। तो आंसर आया 200, 1s 10s and 3 ones। दूसरा है कॉलम मेथड। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है 241 को 483 से। तो आप इन्हें कॉलम में लिखेंगे, उसके बाद वंस वाली डिजिट को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 में से 1 गए 2, उसके बाद हम टेंस वाली डिजिट को करेंगे। 8 में से 4 गए 4 और आगे बढ़ते हैं। अब हम 100 वाली डिजिट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 में से 2 गए 2, तो आंसर आया 242। नाउ असेसमेंट 6, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। 417 में से आपको 204 माइनस करना है। 7 में से 4 गए 3, 1 में से 0 गया 1, 4 में से 2 गए 2। नेक्स्ट 569 में से 248 को माइनस करना है। 9 में से 8 गए 1, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 2 गए 3। Now question number 2, subtract the following using expanded form method in your notebook. अब expanded form method से आपको इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। 800, 6 10s, 8 ones, इसमें से माइनस करना है 400, 1 10s, 5 ones। 8 में से 5 गए 3, 6 में से 1 गए 5, 8 में से 4 गए 4। तो आंसर आया 453। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इन कॉलम्स इन योर नोटबुक एंड सब्ट्रैक्ट। अब इन नंबर्स को कॉलम में अरेंज करेंगे, आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसके बाद इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ सब्ट्रैक्टिंग द 100। तो चलिए अब 100 की सब्ट्रैक्टिंग सीखते हैं। While subtracting 100 from a given number, we just subtract from the 100 place. तो इसमें भी वंस और टेंस की डिजिट सेम आएगी, सिर्फ हम 100 की प्लेस पे जो डिजिट है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 630 में से 300 आपको माइनस करना है। तो वंस की डिजिट सेम उतरेगी, टेंस की डिजिट भी। अब 100 वाली डिजिट माइनस करेंगे। 6 में से 3 को माइनस किया तो आंसर आया 330। नाउ असेसमेंट 7, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। 310 माइनस 100 तो आया 210। 800 माइनस 600 200। 609 माइनस 300 309। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ 3-digit नंबर विद रीग्रुपिंग और बोरोइंग। तो चलिए अब रीग्रुपिंग के साथ हम 3-digit नंबर का सब्ट्रैक्शन करेंगे। 454 को माइनस करना है 823 से। हमने सबसे पहले से कॉलम में अरेंज करा, उसके बाद हम वंस वाली डिजिट को माइनस करते हैं। 3 में से 4 नहीं जा सकते, हम 1 बोरो करेंगे। तो यहाँ हो गया 13 और यहाँ रह गया 1। 13 में से 4 गए 9। अब हम टेंस वाली डिजिट माइनस करेंगे। 1 में से 5 नहीं जा सकता, हम फिर से बोरो करेंगे 100 की प्लेस से। तो यहाँ आया 11। 11 में से 5 गए 6 और यहाँ 8 की जगह क्या बच गया 7। अब 100 के डिजिट को माइनस करते हैं। 7 में से 4 गए तो बचे 3। तो आंसर आया 369। अगर अब आपको आपका आंसर चेक करना है तो कैसे करेंगे? जो हमारे पास आंसर आया डिफरेंस 369 में हम छोटी वाली डिजिट को ऐड करेंगे तो उसका सम आया 823। तो हमने हमारे पास जो बड़ी डिजिट थी वो भी क्या है 823। तो इसका मतलब हमारा ये जो आंसर है ये बिल्कुल सही है। नाउ असेसमेंट 8, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। 640 में से हमें 225 सब्ट्रैक्ट करना है। 0 में से 5 नहीं जा सकता, आप बोरो करेंगे। 10 में से 5 गए 5, 3 में से 2 गए 1, 6 में से 2 गए 4। नेक्स्ट 1 में से 8 नहीं जा सकते, आप बोरो करेंगे। 11 में से 8 गए 3, 5 में से 4 गए 1, 3 में से 1 गया 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको आपकी नोटबुक में करना है तो ये आप खुद करेंगे। नाउ वर्ड प्रॉब्लम्स। एग्जाम्पल 1,
A shopkeeper received 639 books of mathematics. शॉपकीपर ने कितनी बुक्स ली मैथ्स की? 639. He sold 314 books on first day. पहले दिन उसने 314 बुक्स सेल कर दी. अब उसके पास कितनी बुक्स बची? तो पहले टोटल नंबर ऑफ बुक्स लिखेंगे, फिर जितनी बुक्स सोल्ड कर दी आप वो डिजिट लिखेंगे. तो 639 में से आपको 314 को माइनस करना है, तो डिफरेंस आया 325. तो बुक कितनी बुक्स बची शॉपकीपर के पास? 325. नाउ असेसमेंट 9, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स. तो चलिए अब सॉल्व करते हैं. 774 पीपल वर इन्वाइटेड टू अ पार्टी. कितने लोग इन्वाइटेड थे? 774. 272 पीपल कुड नॉट अटेंड द पार्टी. कितने लोगों ने पार्टी अटेंड नहीं करी? 272 पीपल ने. तो टोटल कितने लोगों ने पार्टी अटेंड करी? तो टोटल नंबर ऑफ पीपल थे 774. 272 ने पार्टी अटेंड नहीं करी, तो हम इसे माइनस कर देंगे. 4 में से 2 गए 2, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 2 गए 5. तो कितने लोगों ने पार्टी अटेंड करी? 502 लोगों ने. My dear kids, rest of the part you have to do by yourself. Dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye bye.